Pair of straight lines we start. Started pair of straight A lines. pair of Yes, straight a pair of lines. straight lines we have discussed. What did we do exactly in that? So A that 2-degree auxiliary homogeneous equation. equation. Yes, sir. That Give us 2 an degree example question on you have the found. What is the auxiliary question? equation. Sir, What is the find last question? equation of a pair of lines passing through the origin and perpendicular to the PO cell given by x square minus 7x minus 5y square. Okay. Did I tell you the formula for angle between two lines? Tan theta. No, 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 sir. sir. No, sir. Okay. Okay, ये important है. अगर ये pair of straight lines है, they represent pair of lines passing through origin. I told you that अगर 2 degree homogeneous equation होता है तो वो lines passing through origin होता है, बराबर? अगर मुझे tan theta निकालना तो tan theta का फॉर्मूला ये होता है. Now tan theta हम straight lines में कैसे निकालते थे? We used m1 minus m2 1 plus m1 m2, बराबर? Yes or no? That is 2 root or square root. What? So tan theta 1 formula. 2 root. 2 into root of. Yeah. Square root में कभी 2 नहीं लिखेंगे. Now see, this thing is, मैंने तुमको लास्ट टाइम ऑक्सिलरी इक्वेशन बताया था, उसमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बताया था कि m1 plus m2 क्या होता है, बताओ, नोट्स लिख के बताओ. minus 2h So upon b. minus 2h Minus by 2h upon b. Minus 2h by b. और ये a upon b होता है. अच्छा, Yeah, using yeah. these two, can you derive this tan theta value? Yes, sir. Okay, try करो. Yes, sir. What can you repeat again? What we have to derive? Derive the tan theta result to it. Sir, that symbol is angle bisector, right? What? Sir, you have written, and then after that you have written angle bisector, right? Then angle. Yes, sir. Where is bisector? So Yes. we derived using No bisector. There will be theta angle. minus a minus b formula. We have to derive the formula which you have given, right? हाँ. Okay. Sir, root 4h square minus 4ab upon a plus b. हाँ आ रहा है. 2 कॉमन आ जाएगा. Yes, sir. So that is right, na? Hmm. Yes, sir. Derive.
सर ये फर्स्ट पेज है. हाँ हो गया सर. Done, sir. ओके सो इसको ऐसे करेंगे ना m1 minus m2 whole square will be like this. ऐसे होगा ना. So this will be 4 LCM अगर लेते हैं तो ऐसे इस तरह से आएगा. सर इसमें बेसिक मैथ्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना. I don't know what that is. ये मैं तो ये यूज कर रहा हूँ ना. ये हो गया. और 1 plus m1 m2 will be what? 1 plus a by b which is basically a plus b by b. डिवाइड करेंगे. We will get the answer. b कट जाएगा नीचे वाला. Okay, this is your tan theta. ठीक है. Anybody needs to copy this? 1 मिनट में जल्दी से कॉपी कर लेना. सर एक बार ऊपर करो ना स्क्रीनशॉट लेना. हाँ सर हो गया. कर लो. That this formula should be remembered, right? Yeah. Sir, हो जाए is तो there बता दो. any other method without formula we can solve with? No. हो गया. So one. 1 second. Sir, done.
हो गया सबका? Yes, sir. Now, ओके, ये ट्राई करो। पैर ऑफ लाइन्स है और एक थर्ड लाइन है, 3 लाइन बने। जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालो। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एच एंड पी होता है, ठीक है? लेट्स सी हाउ मेनी गेट दिस। हो रहा है किसी से? तो 2 मिनट।
ओके, तो करेंगे कैसा देखो. So whenever you see this, what should you be reminded of? ये pair of lines है intersect at origin. passing through Passing origin. through origin. Now इनकी slopes हम m1 और m2 लेंगे. और क्या हमें m1 और m2 के रिलेशन मालूम है? Yes, sir. Yes. ये है और m1 m2 a by b है, करेक्ट. अच्छा, अब तीसरी लाइन है जो ऐसे मे बी पास कर रही हो, इसकी इक्वेशन है x plus y is equal to p. अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कैसे? So find points of intersection and then we can use like the determinant. But half of mod can we do? करेंगे. इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे उसके लिए. So what we're gonna do first of all, ये m1 m2 assumption है अपने, तो we will say कि x plus y को p लेंगे और y को m1 x लेंगे. तो x plus m1 So, x but is, how did you know that it is going to pass through the origin, sir? We did that last class. In this, like, when x लाइफ is में 0, पहली it बार has to देख रहे be हो. origin. तुमने नोट रिवाइज किए हैं? ये लाइफ में पहली बार देख रहे हो. When the equation consists only of 2-degree terms, then it has to pass through origin. ठीक है. Okay. y will be m1 p by 1 plus m1. ठीक है. अच्छा, जो a पॉइंट आएगा वो ये आएगा, तो उसका कचरा है. सही है. अच्छा, बाय कॉमन सेंस अगर m2x के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे तो ये ऐसा नहीं आएगा. I need to solve it. I don't need to solve it, right? मतलब No, sir. समझ रहे हो ना, सेकंड कोऑर्डिनेट ऐसे ही आने वाला है. अच्छा, अभी देखो, ऑफ कोर्स O is the origin, तो हम अभी वो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का. पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, ये लगा दे. फिर वापस ओरिजिन, बराबर, ये सही है. फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वापस से फर्स्ट को रिपीट करना होता है. ये तो 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा. डिटरमिनेंट का नहीं लगा सकते. This is only that. वैसे ये डिटरमिनेंट नहीं है, बट ठीक है. ये हो जाएगा m2 सब p वो क्यों स्क्वायर नहीं लगा बाय सकते? क्या? सब वो डिटरमिनेंट का क्यों नहीं लगा सकते? जस्ट बिकॉज मैंने एक यूज किया इसका मतलब नहीं दूसरा रॉन्ग है. तुमको जो फॉर्मूला सिखाया है, जो भी किया, जो भी करना है यूज करो, उससे कोई वो नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द करेक्ट फॉर्मूला. You can use anything, you can use half. Just because I'm using this doesn't mean half into base into height wrong हो जाएगा. So anything, whatever. अच्छा, तो ये ऐसे बनेगा m2 minus m1, ये ऐसे बन रहा है ना, into p square, बराबर. p square कॉमन ले लिया मैंने. Yes, sir. अभी अपन क्वाड्रेटिक वाला लॉजिक यूज करेंगे. अब जैसे भी m1 plus m2 m1 into m2. See, mod m2 minus m1 from the previous thing we just got, this was, मैं दोबारा क्यों करूं मेहनत, ये हमने अभी निकाला था ना. You remember this? Using the m1 plus m2 whole square. Yes, sir. minus 4m. तो करने की जरूरत नहीं है. Denominator is what? 1 plus m1 plus m2 plus m1 plus m2. m1 m2. हाँ, तो कितना है ये? m1 plus m2 is equal to minus 2h by 2h b, by b. and that will be a by b. So it will be b minus A 2 plus b plus होना. a by b. So एरिया जो आता है वो इस तरह से आता है, हाफ p स्क्वायर
ये 2h² माइनस ए बी, ये आ रहा है a प्लस बी माइनस 2h। समझ में आ रहा है? 2 कट आंसर आ गया। क्लियर है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, मोस्टली तुमको क्वाड्रेटिक वाली फील ज्यादा आएगी। आई So could you scroll up? Yes, sir. ऊपर। ठीक है, यहाँ से कॉपी करो solution. So obviously you start off with assuming let the lines have slope m1 m2, and then you use the fact k m1 m2 is a by b and all that. सर मुझे वो लास्ट स्टेप नहीं समझा आपने क्या किया। कौन सा लास्ट स्टेप? लास्ट एकदम मतलब सेकंड लास्ट। सब्स्टिट्यूट किया मैंने, ये तो मैंने कैलकुलेशन किया, ये आंसर है ना अपना। ओके सर, ओके सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सर। सर नीचे आपने बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है ना वो पॉइंट निकालने के लिए? हाँ, सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन? करना है किसी को कॉपी, ये पहले बताओ। Yes, sir, copy you want. हाँ ठीक है। So could you scroll down, sir? Wait, someone is copying, I think. Some bit. We're done, sir. ये हो गया? Yes. Yes. ये हो जाए तो बता दो, स्क्रॉल डाउन। जस्ट Done, sir.
हो गया? Also slightly down. सर 1 minute सर 1 minute ऊपर जाना. Yes sir, done. Sir, could you please scroll down? तो यहाँ पे जो mod m2 minus m1 है उसके नीचे क्या लिखा है आपने? Previously done. Previous question में. सर आपने कुछ होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में? Straight lines का 2a किया था. Discuss हुआ है हमारा 2a. नहीं सर बाकी है. We need to discuss that. Have you done it? सर थोड़ा थोड़ा किया स्टार्टिंग का. Not fully. क्योंकि मैंने टेस्ट के लिए बोला था कि 2a करो. यस Straight lines सर. complete करो. सर पूरा नहीं हुआ था बाकी तो. कितना किया है तुमने? बताओ. सर स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में थोड़े किया, थोड़े नहीं हुए थे. What about others? व्हाट सर? सर कर दूसरों का लिया, कितना अटेम्प्ट हुआ है? पूरा कर लिया. 2a complete है. Okay. Anybody else? यस सर. हाँ सर हो गया पूरा. अरे तुम मुझे बता देते, मैं I would have discussed it. Let's discuss. एक minute. How much time do we have left? So 1 hour 15 1 hour minutes. 15 minutes. So Let's 1 hour discuss 15 minutes. Let's keep this on hold. I'd rather discuss to you. ये कॉपी कर लो पहले. We'll discuss to you. बस 2a अगर So please के scroll डाउट्स down अगर तुम्हारे slightly, sir. क्लियर हो जाते हैं, अगर तुम्हारे 2a के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट काफी बेटर हो जाता है compared to what you were previously. So it's better to clear the doubts of 2a. So could you scroll down, sir? हो गया? इतना ही है बस. हो गया? ना 2a में बताओ भी. हमने एक भी आज तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया ना. नहीं सर. 2a का 1 to 10 बताओ. उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? Sir, 5, 7, 8.
2. 5 7 और है So 1, 4 and 5. which was the toughest okay block section okay जिसने पूरा किया है बताओ we'll discuss these first tell me we'll go in this order what is 5 It's the fourth one as well. what is 5 can you read out the question so I can Yes, sir. Yeah. Points on x plus y equal to 4, which are at unit distance from 4x plus 3y equal to 0. okay 4x plus 3y Equal to 0. okay so basically there is a point on this line which is x plus y is equal to 4 which is at one distance perpendicular distance from this line right ऐसा कभी हमने ऐसे क्वेश्चन किया क्लास में इस पॉइंट को अल्फा कॉमा 4 माइनस अल्फा ले लो एंड देन वी अप्लाई ओके परपेंडिकुलर ऐसा ले सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को ऐसे देन वी अप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला 2 distance from the point is 1 so 4 alpha y के जगह ये है बराबर and this distance is 1 इसको सॉल्व करेंगे अल्फा आ जाएगा आएगा नहीं आएगा Yes, sir. तो will you get it now or okay next 7 आंसर मैच नहीं होते इससे. 7 बताओ A, which is equal to 1 comma 0. हाँ B is a variable point on the y-axis such that the segment AB is bisected at M. The equation of the locus of M is. one sec. A is 1 comma 0 and Yes, sir. you're telling me that तो एक्सिस पे है Yes, sir. And B is a variable point on y-axis. हाँ so is that Such that the segment AB is bisected at M. ठीक है The equation of the locus of M. तो एक मिनट डाउट किसका है सर मेरा ओके बी वेरिएबल पॉइंट है बराबर यस तो बी को मैंने क्या अज्यूम किया 0 कॉमा लैम्डा अज्यूम किया यस लैम्डा वेरिएबल है बराबर यस अच्छा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ क्या बन रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है व्हाट इज एच हाफ हाफ बन 1 रहा by है 2. यही तो लोकस है x इज इक्वल टू हाफ ओके सर Yes, sir. ठीक है So starting के easy the 2 है क्या? नाउ नेक्स्ट एथ वाला बताओ The area of the region formed by the straight lines हाँ mod x plus mod y equal to k is 8. The value of k is. अच्छा ओके ये जो स्ट्रेट लाइन है हैव यू एवर टॉक्ड अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन यस दिस आपने मॉड बोला वाला था Yes, आपने बोला था element. इसे फॉर्मूला शीट में डालना है. एक मिनट क्या हो गया
नहीं मैंने क्या बोला था, क्या शट डाउन हो गया? आपने ना हाँ सर इसका ऐसा हमने कोई ऐसा बनाया है कभी इसके पहले? हाँ हाँ सर बनाया है, आपने बोला था इसका ग्राफ याद रखना है और इसका जो इक्वेशंस बनता है वो हाँ फॉर्मूला शीट में डालना है। इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x प्लस वाई इक्वल टू के होता है, इसके दोनों इंटरसेप्ट्स के होते हैं, सर एक स्क्वायर बनता है ना? स्क्वायर बनता है, हाँ एग्जैक्टली। सेकंड Yes, sir. क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होगा, ये ऐसे बनेगा। ऐसा हमने बनाया है ना, पूरा कंस्ट्रक्ट किया है ना। हाँ सर किया हुआ। तो ये इंटरसेप्ट माइनस के होता है, फिर यहाँ पे माइनस के बनता है, फिर ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसा ये फिगर एक स्क्वायर है पूरा, चार अलग अलग क्वाड्रेंट में चार अलग अलग लाइन आती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि साइड लेंथ निकालते हैं। ये तो k कॉमा 0 0 कॉमा k हो जाता है। साइड कितना हो गया, √2k। सो एरिया कितना हो गया, 2k स्क्वायर, जो 8 दे रखा है ना। Yes, sir. सो k स्क्वायर इज 4, k इज 2। आई 2. बात समझ में, क्लियर है? वाला सर वहाँ पर a is equal to 2 into k square क्या किया है? साइड का स्क्वायर ना, हाँ साइड सर। लेंथ निकाला, हाँ सर। तो स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। यस। स्क्वायर का कैसे एरिया निकाल दिया, ये याद रखो, ये पूरा भूलना नहीं है। आगे वाले चैप्टर में आने वाला है ऐसा ग्राफ। आता है, बहुत बार आता है रेगुलरली, आने वाले नहीं मतलब मल्टीपल चैप्टर्स में। So what's that multiple chapters, sir? ग्राफ स्क्वायर, Okay. Sir, this straight lines is a high weightage chapter, sir. या सेकंड बताओ। Okay. Equation of line equidistance from lines 2x plus y equal to 5 and x plus 2y equal to 4 is. Okay, what does it mean line which is equidistant from bisector? नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर कोई। equidistant from these two lines, no? So we'll use angle bisector formula, खत्म। यस सर। दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखनी है। सही बात समझ में? Yes, sir. ये हो गया, खत्म है। यस ये लिख लो, उसके बाद फोर्थ वाला देखिए।
10 sir. Okay, fourth वाला बताओ. Line L is 3x plus 2 plus 10 equal to 0. What? Something? What? Line L Is what? is 3x plus 2y हाँ. plus 10 equal to 0. हाँ. So plus 10. 3x plus 2y plus 10 is equal to 0. हाँ. A is 5 comma 2 and B is 3 comma 4. हाँ. Then the हाँ. point P on the line L for which PA minus PB is maximum. Okay. Okay. Just pay attention to this question. This is a very difficult question. Not difficult because it is a slightly mixed with geometry. That's 90. Okay. Basically ये ऐसा है. So let's just assume that ये line ऐसा है 3x plus 2y. Pay attention to this question. Let's assume this is A and this is B, correct? Now A and B are some points. They don't lie on this line. But P is a point which is somewhere on this line. We don't know where it is. Could be anywhere. It could be here. कहीं भी हो सकता है. Now I need to find the exact position of P lying on the line so that what is this? PA minus PB is PA minus PB is maximum. Maximum. Okay. So right off the bat, like because there's something like has to be maximum, we want PA minus PB to maximum, tells you that इसमें some sort of inequality or some sort of range का concept आएगा. Yes or no? Yes, sir. Yes. And generally such questions जैसे जितने भी आते हैं either involve worst case scenario calculus or maybe some concepts that you have done in sequence series like AMGM inequality. Yes, sir. Where you get the maximum, or maybe something like triangle inequality. Okay. Now triangle inequality तुमने किया है? No, sir. No, sir. Inequations में और उसमें geometry triangle inequality तीन No, तरीके के sir. होते हैं. नहीं सर, नहीं किया. सब वो क्या sum of two sides सर वो greater than the साइड्स third? ग्रेटर होते हैं एक साइड से सम हाँ, स्कूल में किया है. हाँ सर वो किया है. Sum of two sides. हाँ सर, ये वाला किया. हाँ सर किया है. एक मिनट, let me just write it down. सर वो Mod नाम में से याद किया. नहीं था. Sum of two sides is greater than third side. ये किया है. Sir. यस सर, स्कूल में किया. लेकिन ऐसा भी होता है third side is greater than difference of the first two sides. मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि sum of two sides is greater than So third what side is and third side is greater than yes, sir, difference this of is the. done in school, sir. Okay. एक्चुअली देखो ये देखा जाए तो ये difference of the first two sides ये वाला जो part है, many people might have not done this part. Sum of two sides greater than third side तो किया ही होगा. Sir, but that difference that we didn't do, sir. Okay, that actually comes from the left part only. Like if A plus B is more than C, like can I say sum of the these two sides is greater than the other remaining side? Yes, sir. ये भी तो सही है ना? So okay, you took the B to the right hand side and हाँ, put तो ये negative जाएगा. sign. Yes. तो C is greater than difference of the first two sides. समझ रहे हो? ये उसी से आता है actually. Okay. Okay. This is actually called triangle inequality. Now एक काम करो पहले. Okay, ये diagram है.
Now we are getting a triangle over here. Okay. Let's say this is the first and second side, and let's say this is third side. Okay. So what triangle inequality you will get over here? Actually, if you put a mod, it doesn't make a difference because so if I say this is third side, so third side is greater than difference of, actually coordinate में हम mod डालते हैं, difference of the first two sides. सही है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा लिखेंगे इसको, third side is greater than the difference of the first two sides. अब हमें इसको मैक्सिमम कराना है. ये चीज हमेशा AB से कम है. AB तक पहुंचना मतलब उसका ड्रीम है, AB से हमेशा कम है, तो AB उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या नहीं, अगर पॉसिबल है तो, यस और नो? यस सर. मतलब सर AB से कम होगी ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू? AB से कम होगी, अगर AB तक पहुंच सकेगा तो वो उसकी मैक्सिमम होगी, अगर पहुंच सकेगा तो. हाँ यस. हाँ. बट वो AB से क्योंकि गारंटीड कम है. आई बात समझ में? यस ज्यादा से ज्यादा AB हो सकता है. ओके. नाउ यू नीड टू फिगर आउट कि PA माइनस PB की जो वैल्यू है वो AB के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती, और वो एक सिचुएशन में हो सकती है. ये देखो, लेट्स से P ऐसा पॉइंट है जहां पर such that it is the extension of the line AB. ये देखो, consider this point P. अब एक बात बताओ, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए ना? Yes, sir. तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? अगर हम ये लेते हैं तो ट्रायंगल बनता है बराबर, एकदम ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल, एकदम बड़ा वाला. लेकिन जैसे ही पॉइंट P इधर आ जाता है, क्या होता है? सर ट्रायंगल नहीं बनता है, कोलिनियर हो जाता है, कोलिनियर बन जाता है. ओके, अब ये देखो, कोलिनियरिटी में कंडीशन क्या होती है? ये मैक्सिमम वाली केस है. व्हाट इज PA माइनस PB? सर AB हुआ. तो ये वाले केस में PA माइनस PB इज अटेनिंग द वैल्यू ऑफ AB. इफ इट अटेन्स द वैल्यू ऑफ AB, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि AB को एक्सीड तो नहीं कर सकता, AB से कम है. आई बात समझ में? यस सर. यस. सो अगर ये कोलिनियर है, कोलिनियर वाले केस में PA minus PB is equal to AB, which is the maximum value it can attain. और ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है ना? हाँ सर, ट्रायंगल नहीं बनेगा ना. ट्रायंगल नहीं बनना है तो ट्रायंगल किसको बनाना है? क्वेश्चन में बोला है इट शुड बी अ ट्रायंगल. नो सर, इट इज नॉट गिवन दैट इट शुड बी अ ट्रायंगल. बस अपने को, अगर ट्रायंगल बनेगा तो AB से कम होगा. अगर ट्रायंगल बनेगा तो AB से कम होगा ना? यस सर. AB को तो एक्सीड करेगा नहीं ना इन एनी केस. कोलिनियर होगा तो AB के बराबर बन रहा है, which is like उसका ड्रीम है अब AB तक पहुंचना, और AB को एक्सीड तो इम्पॉसिबल है. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes sir. It is not possible that it will exceed AB sir. हाँ, और ट्रायंगल बनेगा तो लेस देन हो रहा है, समझ लो? ठीक है. Sir, is it possible to use calculus to take maxima sir? Calculus is sometimes very tedious. That's why we don't use calculus. I tried this. I'm using calculus only, लेकिन the calculation. Distance formula, square root. कचरा. आएगा बहुत कचरा होगा. बहुत गंदा था. So many times calculus is not the best way to do things. So that's why क्या करते हैं कि सर. हाँ.
अभी हम निकालेंगे, पहले तो ये एक काम करो, पहले कॉपी करो। अभी हम निकालेंगे पी, पी हमने निकाला नहीं, आंसर हमने निकाला नहीं है, वो तो कोलिनियर है बोल दिया है, वो अभी अपन इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस यूज करके हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो। सर लेकिन मैक्सिमम तो आ गया ना आंसर, ए बी का डिस्टेंस हो गया ना। नहीं, व्हाट इज इट आस्क्ड, फाइंड द पी सो दैट पी ए माइनस पी इज मैक्सिमम और व्हाट? ऑप्शंस किसके टर्म्स में, पी ढूंढना है या डिस्टेंस ढूंढना है? Sir, we have to take a piece. We have to find the point P. हाँ, तो पॉइंट पी नहीं निकाला ना। यस सर। सर लाइक निकाल सकते हैं ना ये, इसकी ए बी की इक्वेशन पता है हम लोग को, और ये जो हाँ तो अभी निकालेंगे, अभी निकालेंगे। सर तो ऐसे मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन में मतलब कोलिनियरिटी मोस्टली होती है ना, जिससे मैक्सिमम मोस्टली कोलिनियरिटी होती है इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। ये जो स्पेसिफिकली ये वाला टाइप जो है ना, जिसमें ये पीए प्लस पी, इसमें पीए प्लस पीबी वाला भी आता है, एक बाद में 2a में ही आएगा, सो यू विल एनकाउंटर दैट, इसलिए 2a बहुत इंपॉर्टेंट है। Sir, I was thinking to make it the maximum value, then the value of PB should be the least. So the least value will be a perpendicular passing from B to this line. See, it doesn't work that way. If you are minimizing PB, what if in the same process PA is also getting minimized? So they are not like two separate quantities, they are linked. मतलब it's like कि you are trying to say कि अच्छा, if I want to maximize profit, तो मैं selling price को constant रखूंगा और cost price को कम करूंगा, or something like that. But here it's not like कि मैंने cost price और selling price independent है. It's like if you change PA तो PB भी interact हो जाता है change. Point को अगर change करोगे तो PA and PB दोनों affect हो जाते हैं. You understanding? Yes. So that's why what's happening is that वो it's not as simple as like trying to सर अगर पीबी परपेंडिकुलर हो गया तो पीए तो इंक्रीज ही हो गया। हाँ, बट एक को चेंज करोगे दूसरा भी चेंज हो रहा है ना, सो इट्स नॉट लाइक कि पी इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं एक मिनिमम हो रहा है, बट दूसरा जो है वो मैक्सिमम थोड़ी हो रहा है। मतलब ये भी करते जब भी केस में, जिस केस में कुछ से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो। So can you scroll down? So okay, can you find point P now Yes, sir. using the intersection? निकाल के बताओ मुझे अभी P क्या है।
2 पॉइंट फॉर्म से AB का इक्वेशन निकालो, और ये तो इक्वेशन पहले से ही पता है, इनका इंटरसेक्शन बताओ क्या है। सर -24, 31. -24, -31. यही आ रहा है। हाँ, -24, 31, दैट सीम्स राइट। ऑप्शंस में वही दिया है ना? ठीक है। Yes, sir. now तुम लोगों को 2A में सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा? Sir, could you repeat the question, sir? Question number 9, can you please solve? Question number? Sir, 9. Yes, sir. What is 9? Sir, the point A is the reflection of B 4, -1 in the line at y is equal to x. The length of AB is. It's the mirror image. Yes, sir. Formula 11. We have to use the mirror image formula. No, तुमको पता y = x में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना कि ये x और y इंटरचेंज हो जाते हैं, पता है? Yes, sir. हो गया, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो। तो इसके लिए y = x के लिए तो डायरेक्टली हो जाता है, इन्वर्ट हो जाते हैं, बस हो गया। ठीक है। अब मुझे बताओ, सर अब तो पूरा सॉल्व नहीं किया तो पता नहीं कौन सा हार्ड है। हाँ सर, आप 10th question, मैंने please. जिसने पूरा किया है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सर आई गेस स्वाति कुमारी ने किया था। कि जिसने रेगुलर किया है, मैं पहले वो आई वांट टू। सर एंडिंग के बस हार्ड लगे हैं। एंडिंग लाइक एंडिंग का मुझे 60 to बताओ। 70. You want me to start from 50 then? No, sir, it's fine. 60 to 70? नहीं सर, 20 से जाते तो फ्लो में बनता, उधर भी डाउट है। Okay, 21 to 30 बताओ। हमारा Sir, 11 to 26. सर 24. Sir, 27. मैंने आपको 10th वाला क्वेश्चन पूछना भूल गया। 10th. I'll take it. हाँ, और क्या? Sir 25. हाँ, और 29. 39, 29, 29. नहीं 21 to 30. Sir, 29. Okay, what else? Okay, tell me the first question. 26. A square having side length 4 units हाँ, has one of its extremities at the origin and the remaining 3 above the x-axis. If one of the sides of the square is inclined at an angle alpha with the positive x-axis, then the equation of the diagonal which does not pass through the origin is. one of the sides is inclination alpha. Yeah. Which side are they talking about? There are two sides. One is this one is this one. Is it this one? Yeah, I The think. question is not clear. Okay, but it's anyways. at that positive x-axis, so yeah. No, it could be this one is also making alpha. I don't know which one. Yeah. But I'm going to assume this one. I am clearly confused. Okay, this is alpha.
This is the origin. Side length is 4, right? I taught you Yes. polar coordinates, right? So Yes. can I say Yes, this should sir. be 4 cos alpha, 4 sin No. alpha? Directly आ गया ना 4 cos alpha. Yes, sir. Okay. अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है C, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4 है और इसका एंगल कितना है ये वाला? Sir, 90 plus alpha. 90 प्लस अल्फा है. So in C, in polar would be what? R comma theta. कार्टेशियन में क्या होगा? So, R cos theta or sin theta? Agree? Yes, sir. yes, sir. इनके पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, मतलब C will be अब ये दोनों पॉइंट्स मुझे पता है, अब मुझे So इस now we डायगोनल का can take इक्वेशन the बोला है. yes, Yeah, we can use 2-point form and get the equation of the diagonal. yes, yes. समझ में आ रहा है? हो जाएगा. Yes, sir. So we are supposed to just use 2-point form, right? Yeah, 2-point form use करो. Copy this and then we'll do the 24th. So what I tried to do is I took the angle between the diagonal OB and the x-axis as 45 plus alpha, and then I found B, and then I found the midpoint, and then we know the slope, so I tried to find the other diagonal, but it became very, I mean, it was a very bad equation. You can do it with that also. It's कर सकते हो. 45 plus alpha is the सही है. That's also a method.
Sir, done. हो गया? Okay, now 24 बताओ. The line 3x plus 7y equal to 21 meets the coordinate axis at AB. A comma B. The rectangle OAPB, O is the origin, is completed. The number of lattice points inside the rectangle is. Okay, this question is not a difficult question. It's just that people might be confused with what is lattice points. Okay, so basically ये एक line है, इसके intercept 7 और 3 है, ये basically 7 है, 0,3 है, then ये O है, A है और B है, हम एक rectangle complete करते हैं, एक rectangle बनता है, correct? Now, अभी P के coordinates obviously 7,3 होंगे. Now I want to find कि इस rectangle के अंदर कितने lattice points हैं. Lattice points का definition क्या होता है? Lattice points is basically ये chemistry का term है actually. Number of points. So no number. Lattice points are basically points with integer coordinates. Like if I have a point 2, 4, ये lattice point. If I have a point 2.1, 3, this is not a lattice point. If I have root 3, 1, this is not a lattice point. आई बात समझ में? ऐसे. So sir, we have to find 7,3. You have to find 7,3. नहीं, जो rectangle के अंदर कितने lattice points है वो निकालना है. देखो तुमने ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर में कैसे डिविजन्स होते हैं, देखो ऐसे ग्रिड्स बनते हैं ना, सर कुछ फॉर्मूला लैटिस पॉइंट निकालने का? नहीं, गिनती करना है. तुम्हारा पीएनसी चल रहा है क्या? हाँ सर चलिए. यस सर. हाँ ये सर. देखो, ये देखो, ये ऐसे ग्राफ पेपर में ऐसे ग्रिड्स होते हैं ना, एक्स और वाई वाले, और ऐसे भी होंगे. Yes sir, 1, 2. This is y equal to, sorry, this is y equal to 1, y equal to 2, y equal to 3. ये अच्छा, इनके जो इंटरसेक्शन होंगे वही तो लैटिस पॉइंट्स होंगे, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये सो निकाल सकते हैं. Sir, y ये की range देखो 1 से 2 इंटरसेक्शन और पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये ग्रिड्स के, यही तो है इंटीजर कोऑर्डिनेट्स वाले. कितने ऐसे जो ट्रायंगल के, जो रेक्टेंगल के अंदर है? 12. हो गया आंसर, 12 है. Did you take each individual point and then remove their power and then return? पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती, कर सकते हो, लेकिन ये वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इफ यू नो व्हाट टू डू. सर एक काउंटिंग वाला क्या किया आपने? काउंटिंग वाला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 12. मतलब सर अपने रीजन क्या बताया कि पावर से क्यों नहीं कर सकते ऐसा? पावर से कर सकते हैं, लंबा पड़ेगा, unnecessary है. It's like basically not required. Okay sir, we won't count those points, right? P, A, B and O. अब वो मुझे बोला नहीं ऑन द रेक्टेंगल है या हाँ. इनसाइड बोला है, तो I don't know. सर ऐसा क्वेश्चन TWT में भी आया था. आया था.
ये हो जाए, ये हो गया। यस सर होगा। 27 बताओ। If ABC belong to R non-zero number such that 2 by B equal to 1 by A plus 1 by C. HP है। 2 by B. हाँ, एक सेकंड। Equal to 1 by A plus 1 by C. Then the line BCX plus ACY plus AB equal to 0. ये फैमिली का एक सवाल है, याद है मैं बताया था कि दिस ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ऐसी कुछ है ना। Yes sir, इसमें लिखा है passes through a हमने fixed एक point ही वाला whose क्वेश्चन किया था। coordinates ऐसा एक मिनट, अच्छा ये देखो ऐसे करो। इसको मैंने बोला था फैमिली वाले क्वेश्चन को तुक्के से भी कर सकते हो, तुक्का ज्यादा इजियर पड़ता है। रिमेंबर दैट। ओके, इसको ABC से डिवाइड करो, ये ऐसे बनेगा। करेक्ट, ऐसे बनेगा ना। और ये जो कंडीशन है ये एक्चुअली इस तरह से 1 by A minus 2 by B plus 1 by C 0, ऐसे आ रहा है। और ये हमारी लाइन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाय कंपैरिजन कि इसको 1 -2 सेटिस्फाई नहीं करता है? करता नहीं करता है? Yes, sir. कर रहा है ना। सर लाइक ये तुक्के से हुआ, लाइक जब हम प्रॉपर मेथड से जाएंगे तो उसको L1 प्लस लैम्बडा L2 में कन्वर्ट करेंगे ना। हाँ, वो तो उसको L1 प्लस लैम्बडा L2 से करना पड़ेगा अगर प्रॉपर मेथड से करेंगे। तुक्का से भी कंपैरिजन से भी कर सकते हो। नहीं, तुक्का नहीं, कंपैरिजन। Sir, can you repeat what the other method is? फैमिली, ये हमने क्लास में सर फैमिली का एक क्वेश्चन किया था ना, 3A plus 5B plus 7 से ऐसे कुछ किया था, is equal to 0, then this Yes always sir. same है। ये Yes sir. same ditto। वो just look up that question, फैमिली से कैसे करना है। Yes, sir. और सर आपने एक ना क्लास में एक एग्जांपल कराया था जिसमें लाइन अल्फा से रोटेट होता है तो उसका मतलब y कोऑर्डिनेट्स चेंज होता है, तो 1 by a स्क्वायर 1 by b स्क्वायर वाला वो सर आपने सॉल्व नहीं किया था एक बार, और वो क्वेश्चन में भी मतलब 2-3 बार आया है। वो आप एक बार लास्ट मैंने में दिया था बट सॉल्व नहीं किया था इन हाँ क्लास। हाँ सर, यस सर। So I gave you as in classwork to do it and come. Okay. Okay. Tell me what is the. We'll see. You have a lot of doubts. 22. 22 क्या है? The algebraic sum of the distance of 3 non-collinear points A, B, C from the variable line L is 0. Hence L passes through. अच्छा, ये भी बहुत अजीब सा सवाल है। There is a line L जिसको मैं assume करूंगा ax plus by plus c।
and there are three fixed points, x1, y1. Let's assume the assumption है, but they are fixed points. Okay. Then what is given about them? Sum of the what? So algebraic sum of distance of three non-collinear points is 0. What does this even mean? What does this even mean? Algebraic sum of the distances. Okay. Distance of point from a line कैसे निकालते हैं? So PDF. ठीक है, PDF Perpendicular में distance formula two. mod होता है ना, PDF में mod होता है ना. Yes, sir. हाँ sir. Sum of mod 0 कैसे होगा? Sum of the distance is equal to 0 आ रहा है ना, ये क्या चल रहा है? ऐसा होता है? ऐसा possible है? नहीं sir. Possible नहीं है ना? नहीं sir, क्योंकि mod तो positive value ही आएगा. So does it make sense when they are saying कि algebraic sum of the distances मतलब perpendicular distance is 0, यही बोला है ना? सर लाइक वो सब जीरो हो सकते हैं, बट अगर वो सब जीरो हुए तो फिर वो वही लाइन पे हो गए ना. Yes sir. पर वो कोलिनियर नहीं बोला है, तीनों एक लाइन पे नहीं है. और उनका डिस्टेंस भी दिया है ना, तो फिर 0 कैसे होगा? हाँ सोचो. अच्छा, see, there is a word used, algebraic sum. Okay, so remember this thing. This is something new. Algebraic sum वैसे तो ये कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, लेकिन sometimes what happens is sometimes you enter a situation where you are hearing a new word or something like that. Okay, so think of it like this. I taught you sine distances. Yes Sine sir. distance r बताया था ना ये. So if maybe they are adding up in such a way that up the line, down the line, opposite directions add up, okay, zero vector की तरह zero net result Yes बन रहा है. sir. तो ऐसे possible है? Yes sir. D2 plus D1 Yes. equal to D3. And now do you think it would be possible? Okay. Yes sir. So algebraic sum, then you think of yourself कि हो सकता है, it is possible that algebraic sum means we are actually finding PDF only, but not the mod. जैसे मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था ना, AB और mod AB में डिफरेंस होता है. हाँ. So basically, instead of calculating PDF with the mod, we just calculate distance without the mod. I have not put any mod here. You understanding this? सर मतलब बिना mod put किए find out कर रहा है. Yeah, so that will give me the sine distance. Okay. Mod लगाएंगे तो absolute distance आएगा ना. हाँ सर. Yeah. So ultimately तो ये इंटरप्रेट करना एक पार्ट हो गया. अभी दूसरा पार्ट है कि वो क्वेश्चन में पूछा क्या है. Obviously ये रूट को इधर फेंक देंगे, रूट को फेंक देंगे. एक को कॉमन लेंगे तो ऐसे बन रहा है ना. Yes. ये भी एक्चुअली फैमिली वाला तुक्का टाइप का क्वेश्चन है. ये देखो ऐसे बन रहा है. ठीक है. अच्छा, तो अगर हम ये C को का कोएफिशिएंट 1 करेंगे तो ऐसे नहीं बनेगा. ऐसे बन रहा है. अब मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर लाइन L is satisfied
by the point, which point? So centroid. Centroid. Centroid की coordinates line को कर रहे हैं satisfied, yes or no? ठीक है? Sir, is this a type of an important question? So ये भी हमने comparison method use किया है, दोनों line की equation और जो equation हमें आई है, और देख के पता चल रहा है कि ये centroid से पास कर रहा है. Again ये family वाला trick लग रहा है, मैंने जो same class में किया है. इसमें क्या है, see, I mean ठीक है, ये वाला part थोड़ा सा confusing था in terms of the language or whatever, it's not clearly mentioned that, and then the family part. So this is keep this at the back of your mind when you're doing this. Yeah. ठीक है? Yes, sir. तो देख लेना है डायग्राम. Sir, can you scroll down? हाँ. सर ये जो हमने 24th वाला सम किया था लेटेस्ट पॉइंट्स वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है? और lattice points ना it's okay. नहीं ना सर? हम्म. ओके. हाँ, ये हो गया. Yes, sir.
Sir, done. What's the question after this? 25, 29. 25 बताओ. ABCDF is a regular hexagon. A is Achha, equal to I think I know this question. Wait a minute. I think there's a hexagon like this. ये 1 और ये 2 है ना? yes sir. ये ऐसा कुछ हेक्सागोन है ऐसे. बराबर. और अपने को शायद इसका इक्वेशन निकाला है. आप भी किसी के लिए yes sir. ये लाइन का इक्वेशन निकालना है. बराबर. yes sir. Now there are many ways to do this. This is the single way to do it. I can think of a simple way. There might be easier way. There might be difficult ways. Many people do this question with different ways. Now, so now, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? Slope and coordinate. स्लोप एंड पॉइंट. बराबर. हाँ. ठीक है. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ. ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं काफी आसानी से. भी अगर ई डायरेक्टली ए के ऊपर होगा, just by feel, regular polygon. Yes. yes तो sir. ये direct इसको अपन 1 comma alpha ले सकते हैं. yes sir. Yes sir. हेक्सागन की साइड लेंथ 1 है ना? 1 लेंथ है ना? तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब 1 है ना? yes sir. ये वाला एंगल कितना है? ये वाला. या ऐसे करो, मैं इसको अगर 2 हाफ्स में डिवाइड करता हूँ, दोनों इंडिविजुअल एंगल्स कितने हैं? 30 degrees. 60 sir. 60. 120 होता है टोटल एंगल. अच्छा, तो ये जो लेंथ होगा, मुझे बताओ ये हाइट कितना होगा? sin 60 नहीं, √3/2 होगा. क्या हाफ होगा बताओ? हाँ सर होगा. Yes sir. 1 into sin हाँ 60. सर. 960 is √3/2 upon 1. सही है? सही लिखा मैंने? True sir. हाँ. अच्छा, तो मुझे बताओ कि पॉइंट ई का हाइट कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है? √3. So alpha will be √3. सही. यानी ई की कोऑर्डिनेट्स अपने को आ गए 1, √3. सही है? हाँ सर. Now comes the slope का कैलकुलेशन. स्लोप का कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है. मैं एक्चुअली यू कैन फाइंड सी के कोऑर्डिनेट्स आल्सो इन दिस मैनर, बट मैं तुमको स्लोप का भी तरीका बताता हूँ. देखो, बहुत सारी टेक्निक्स है टू डू दिस क्वेश्चन. ये एंगल कितना है? 60. 120. अरे 120. Sorry, 120. 120. अच्छा, तो ये एंगल कितना होगा? 30 isosceles triangle. 30 होगा. 30. अच्छा, तो बताओ फिर ये एक्सटर्नल एंगल कितना है? 150 degree. 50 degree. 150 डिग्री. बताओ मैंने ये एक्सटर्नल एंगल क्यों निकाला? सर अभी हमारे पास लाइन So that addition का was पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साथ स्लोप है. एंगल आ गया सर. हाँ. तो slope निकाल. देखो, लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने निकाला. ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसके पैरेलल है ना. बराबर. तो जो हमारी लाइन है सीई, उसका हमने इंक्लिनेशन निकाला है 150.
Inclination is with respect to, it's with respect to x-axis, but actually Yes, with sir. respect to any horizontal line. Clockwise or anti-clockwise? हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज है ना ये. अब वो एक्स एक्सिस से भी सेम ही एंगल बनाएगा ना, बिकॉज पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, राइट? Yes, sir. ठीक है, डू यू एग्री कि 150 ही होगा आगे जाके हाँ, बनेगा जो sir. एंगल? Yes, sir. ठीक है. सो दैट द स्लोप ऑफ CE won't it be tan 150? Yes, Sir. sir. Can we use slope point form? Yes, sir. Yes. So this is more like a geometry question, थोड़ा सा मतलब, but आई बात समझ में? ये है equation Yes, of C. Now there are many ways. Try to do this by on your own with finding coordinates of C also. 2-point form से फिर कर सकते हो, but C निकालने की कोशिश करो, ठीक है? सर फिर C निकाल के भी हो सकता है ना? हाँ, C निकाल के हो सकता है. सर आया. क्या आया? C के साथ करना था ना? नहीं, अभी नहीं करना है, बाद में घर पे करो. Next. ट्वेंटी 25 के बाद 29 था. 29 and 21. Yeah, 29 बताओ क्या है? सर एक सेकंड खाली वो डायग्राम दिखाओगे? सर इसमें हाँ, C ऐसे ही सर. निकालेंगे ना, और C के तो 60 डिग्री लेंगे, फिर उसको C 1 cos 60 लेके 2 को ऐड कर देंगे वैसे. क्या चीज? सर C वैसे ही निकालेंगे ना, वो बाहर के एंगल को 60 लेंगे, फिर 1 cos 60 + 2 कर देंगे तो x आ जाएगा. हाँ, वो x और y आ जाए. हाँ सर होगा. हो गया? हाँ सर. यस. Next. 29.
A variable line through a fixed point A comma B intersects the coordinate axis at A and B. If O is the origin, then You the mean to path say of the point is small a b, is that? yes, sir. Fixed point Point is where they're small meeting a. is Yes, capital A and B, right? yes, sir. Huh. If O is the origin, then the path of the centroid of the triangle OAB is Locus of centroid. Is it? yes, sir. Okay. ये काम करते हैं. Can I assume this to be alpha comma 0 0 comma beta? Alpha beta वेरिएबल है, वो लोकस में नहीं आना चाहिए. अच्छा, ए बी की इक्वेशन क्या होगी? बाय 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट, ऐसे नहीं होगी? यस सर. इसको ए कॉमा बी क्या करता है? क्या करता है? सैटिस्फाई करेगा इक्वेशन को. ऐसे हो जाएगा. ठीक है. ओके, नाउ अब एक काम करते हैं. सेंट्रॉइड एच कॉमा के, सेंट्रॉइड कैसे आता है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला. सेंट्रॉइड फॉर्मूला से आता है. सेंट्रॉइड निकालेंगे. इसे आएगा अल्फा बाय 3 बीटा बाय 3. यस. अल्फा फिर क्या हो गया? 3h, बीटा हो गया 3k. अल्फा बीटा को हटाना है, रिप्लेस करना है. कहाँ रिप्लेस करना है? इस इक्वेशन जो अपन ने. तो क्या बनेगा? अल्फा 3h इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये लोकस है. इसमें बाद में h को x से और k को y से रिप्लेस करेंगे. क्लियर? Yes, sir. सर आपने वो ए बी से क्यों रिप्लेस किया है एक्स और वाई को? h और k से रिप्लेस किया x और नहीं सर, पर अल्फा बीटा को रिप्लेस किया. अल्फा बीटा वेरिएबल है ना. Yes, sir. हो गया. हो गया. Okay, 21 was the last one in this section, and then we'll do the next. We have less time, but 21 बताओ.
The number of points x comma y satisfying the system x square plus y square less than equal to 36 and 3x minus 4y is 25. So 25. 25. ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, तो सर्कल का है। क्या कर रहा है? ये सर्कल का है क्वेश्चन, सर्कल का इक्वेशन है, इसका कॉन्सेप्ट है। मिस्टेक, ये मत करो, इस चैप्टर का है ही नहीं है। तो इसको हम करेंगे अगले चैप्टर में। द फर्स्ट थिंग विल डिस्कस, लाइक स्टार्टिंग में ही ये हो जाएगा। अच्छा, मैं खाली I'll note down the questions, might do a few here, not all of them. 31 to 40 बताओ। सर 21 में जो हम लोग को ये 3x minus 4y equals to 25 दिया था, तो इसमें से हम लोग y equals to 25 minus 3x by 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते थे क्या? नहीं, I don't want to do it by baby curve. मैं एक और तरीके से करूंगा, इसलिए कोऑर्डिनेट के लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। So 34. 34. Yeah. What else? Sorry? 32. 32. Okay. $39. मेरा बटन दब रहा है, हैंग हो गया। हाँ 39। 37. So ये next class में करेंगे ना? हाँ, I'll do 1 or 2 questions at least. One question तो कम से कम करेंगे। 34 बताओ। Yes, sir. The base BC of a triangle ABC is bisected at point PQ, and the equations of the side AB and AC are Px plus Qy equal to 1 and Qx plus Py equal to 1. The equation of the median through A is, मतलब बेसिकली ये लाइन जो इनसे पास कर रही है और इससे मीडियन ना। Yes, sir. Now what I'm going to assume here is you know how to do it, but तुम्हारा ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, is it? और हाँ बिल्कुल शुरू भी नहीं हो रहा है मतलब।
सी बिकॉज मीडियन निकालना कैसे निकालोगे, ये पॉइंट तो आ जाएगा इंटरसेक्शन से, उसके बाद अपने को मिड पॉइंट भी दे रखा है दूसरे साइड का, तो हम लोग वो भी करेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म आ गया, उससे मीडियन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है आंसर मैच नहीं करेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैन वी यूज फैमिली ऑफ लाइंस, कैन वी से इक्वेशन ऑफ मीडियन जो लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है इज ऑफ द फॉर्म L1 plus lambda L2 is equal to 0. Yes, sir. ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज ये वाला जो लाइन होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू से पास कर रहा है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है तो मतलब ऐसा होगा। लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे अच्छा ये पी क्यू से भी पास कर रहे हैं, सो वील गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। समझ में आ रहा है? सर आप रीजन बताओगे कि पहले अटेम्प्ट में आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है? रॉन्ग नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू गेट इट इन दैट फॉर्मेट। मैच नहीं कर रॉन्ग नहीं है, मेथड राइट है। हाँ सर, पर ऑप्शन से नहीं मैच करता है। मैच नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट इन दैट फॉर्म, वो शक्ल नहीं आ रही है। हाँ सो तुम्हारा वो अलजेब्रा का प्रॉब्लम है। सर हमने ये क्या किया है, पी क्यू इट्स मतलब it's passing through that also, so you've just substituted it. सब्स्टिट्यूट किया एक्स वाई की जगह। Okay. इससे डायरेक्ट शक्ल आ जाती है, उससे मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। इफ योर अलजेब्रा इज गुड इनफ यू कैन डू इट बेटर। अगर अलजेब्रा थोड़ा कमजोर है तो तुमको उस एक्सप्रेस करने में उस फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। ये ऐसे करो, सारे ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करके चेक करो कि तुम्हारे आंसर से मैच करते हैं। यही बात समझ में, ऐसे करो स्मार्टली। हाँ सर। कई लोग ऐसे भी करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, पी को 1 ले लेते हैं, क्यू को 2 ले लेते हैं, और फिर सारे ऑप्शंस चेक करो और तुम्हारा आंसर चेक करो कि मैच करता है कि नहीं। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। सो थोड़ा सा स्मार्टली भी करो, मतलब ये नहीं है कि तुमको एकदम से वो मैच कराना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पी को 1 लो, क्यू को 10 ले लो, और सारे ऑप्शंस चेक करो क्या आ रहा है, और तुम्हारा आंसर चेक करो क्या आ रहा है, मैच कर रहा है किसी से, नहीं कर रहा है। बस ऐसे कर सकते हो, क्योंकि तुमने मेथड सही लगाया, मेहनत तो ने किया है, तुक्का नहीं है। It's just that algebra में फंस रहे हो, so you can do this. So lambda will be basically ठीक है, ये आएगा लैम्डा। सो अभी लैम्डा को इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो मीडियन होगा वो इस तरह से, फॉलोइंग। ये लास्ट है, एक टॉपिक कर लो। Sir, if you are done, can we leave? या
Bye, sir. Thank you. fine. ओके, आज के लिए इतना ही।